अच्छा, तो ये हमने स्टार्ट किया है सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। इसकी जो नोट्स हैं, जो थियोरेटिकल नोट्स हैं, वो हम पहले पढ़ेंगे। इसके बाद हम एमसीक्यूज पे जाएंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिख रहा है कि ये कि अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर कार्ल तज़ागी सॉइल मैकेनिक्स is the application of the laws of the mechanics and the hydraulics to engineering problems dealing with the sediments and other unconsolidated accumulation of soil particles। ठीक है। आगे क्या लिखे, आगे ये चीज़ लिखी हुई है कि ठीक है। अच्छा, फिर से मैं स्टार्ट से पढ़ता हूँ। ये अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर कार्ल तरज़ागी सॉइल मैकेनिक्स is the application of the laws of the mechanics and hydraulics to engineering problems dealing with sediments and other consolidated and other unconsolidated accumulation of the soil particles produced by the mechanical and the chemical disintegration of the rocks regardless of whether or not they contain an admixture of organic constituents. The term soil has various meanings depending upon the general professional field in which it is being considered. For engineering purposes, soil is defined as natural aggregate of mineral grains, loose or moderately cohesive, inorganic or organic in nature. According to geologists, soil is defined as the disintegrated rock, and according to an agriculturist, soil is the loose mantle at the surface of the earth which favors the growth of the plant. ठीक है। The soil is produced by mechanical or chemical weathering of the solid rocks, which may be igneous rock, sedimentary rock, or metamorphic rock. The mechanical weathering is caused by the physical agencies such as periodical temperature changes, impact and splitting actions of the flowing water, ice and wind, and splitting actions of the ice, plants and animals. Cohesionless soils, which are sands actually, are formed due to the physical disintegration of the rocks. ठीक है। The chemical weathering may be caused due to oxidation, hydration, carbonization and leaching by organic acids and water. The soil obtained due to the weathering may be residual or transported soil. The residual soils are found by weathering of the rocks but located at the place of the origin. These soils are found from rocks like granite, basalt, sandstone, limestone and salts. तो बेसिकली इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन क्या है, इसमें ऊपर इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि सॉइल ऑब्टेन ड्यू टू द वेदरिंग में भी रेजिडुअल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो रेजिडुअल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल में क्या फ़र्क है? रेजिडुअल सॉइल्स आर फाउंड बाय वेदरिंग ऑफ द रॉक्स but located at the place of the origin. These soils are found from the rocks like granite, basalt, sandstone, limestone and salts। ठीक है। इसका ये मतलब है कि these soils are found from the rocks। ये सॉइल जो है ना, बेसिकली ये रॉक से बनते हैं। कौन से सॉइल? रेजिडुअल सॉइल। एज द नेम सजेस्ट के these soils are formed by वेदरिंग ऑफ द रॉक। जब वेदरिंग ऑफ द रॉक्स होती है, रॉक्स छोटे छोटे हिस्सों में बनते हैं, तो रेजिडुअल का भी मतलब वही है। तो रेजिडुअल रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय रेजिडुअल सॉइल्स। रेजिडुअल दो किस्म के सॉइल होते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल और रेजिडुअल सॉइल। द रेजिडुअल सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ द रॉक्स बाय लोकेटेड एट द प्लेस ऑफ द ओरिजिन। दिस These soils are formed from the rocks like ये किन रॉक से बनता है? ग्रेनाइट से भी बन सकता है ये सॉइल। ठीक है। ये बेसॉल्ट से भी बन सकता है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड सॉल्ट्स। ठीक है। हम नीचे आते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है? द सैंड, सिल्ट एंड क्लेज आर रेजिडुअल रॉक्स। ठीक है। नहीं, सॉरी, सॉइल्स। ठीक है। तो रॉक्स तो मैंने बता दिया था। अच्छा, उन्हीं रॉक से फिर ये चीज़ें बनती है, सैंड, सिल्ट एंड क्लेज। ठीक है, विच आर एक्चुअली कॉल्ड द रेजिडुअल सॉइल्स। तो कौन सी रेजिडुअल रॉक्स है जिससे रेजिडुअल सॉइल्स बनते हैं? रेजिडुअल रॉक्स जो बेसिकली है, ऊपर हमने ये पढ़ा, जो कि केमिकल वेदरिंग से बनते हैं, रेजिडुअल सॉइल्स। ठीक है। और वो जिनसे रेजिडुअल सॉइल्स बनते हैं, वो रॉक्स कौन से हैं? वो है ग्रेनाइट, बसॉल्ट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड सॉल्ट्स। ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखा है कि द सैंड, सिल्ट एंड क्लेज आर रेजिडुअल soils. The transported soils are those soils which are carried away by the force of the wind, ice, water and gravity। ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि द ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स कौन सी होती है कि जिसको मूव किया जाता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और वो किन किन एजेंट से हो सकता है? वो एजेंट जो है, मूविंग एजेंट है, वो विंड, आइस, वाटर एंड ग्रेविटी भी हो सकती है। तो विंड, आइस, वाटर
और ग्रेविटी से जो सॉइल मूव होता है उसको हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं, और जो कि वेदरिंग के रॉक से बनते हैं तो उसको हम कहते हैं रेजिडुअल सॉइल। रेजिडुअल सॉइल्स कौन से रॉक से बनते हैं? ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, और जो सॉल्ट्स थे, बाकी चीज़ें थी, उनसे बनते हैं। और रेजिडुअल सॉइल्स कौन से हैं? सैंड है, सिल्ट है, क्लेज हैं। ठीक है। और कौन से ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स कौन से हैं? ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स वो है जो कि मूव हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय सम एजेंट, बाय मूविंग एजेंट, जो कि कौन से हैं? जो कि है आइस वाटर या ग्रेविटी या विंड। ठीक है, विंड, आइस वाटर और ग्रेविटी। तो अब हम नीचे जाते हैं, नीचे क्या दिक्कत है? द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज एविलाइन सॉइल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आया होता है। ठीक है, कि जो कि आपकी कौन सी सॉइल है? ये जो है ना, बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि ये एविलीन सॉइल कौन सा होता है, तो एविलीन सॉइल इज द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड। ठीक है, तो इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हो कि यार ये जो एवोलीन है ना, ये एयर के जैसा है, तो हम कहेंगे यार ये तो विंड से मूव हो रहा है। ठीक है, तो एवोलीन सॉइल, एवोलीन, एवोलियन, ठीक है, एविलियन, सॉरी, एविलियन सॉइल किससे मूव होता है? विंड से। ठीक है, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड एविलियन सॉइल, सच एज अच्छा, एक कौन सी सॉइल एग्जांपल इसके? उसमें एग्जांपल है लॉइस। ठीक है, तो द लॉइस इज द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय द अच्छा, ठीक है, सच एज लॉइस। लॉइस वो सॉइल है जो कि विंड से मूव होता है, और उसको वो एविलियन सॉइल की कैटेगरी में आता है, क्योंकि मैंने अब अभी आपको बात बताई थी कि बेसिकली उसका क्या रीज़न है, क्योंकि हम कहते हैं कि यार ये तो जो ए है ना, एविलियन है जो भी है, ये हम एयर से हम कहते हैं कि यार एयर के जैसे है, तो हम क्या कहेंगे कि यार ये जो है ना, बेसिकली ये आपका हो गया विंड के साथ इसका ताल्लुक हो गया। तो आप कहोगे यार जो एविलियन सन है वो बेसिकली आपका विंड से मूव होता है। ठीक है, उसको एविलियन सन में एग्जांपल कौन सा है? इसमें एग्जांपल है लोइस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये है कि द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर इज कॉल्ड द एलुवियल सॉइल। ठीक है, जो कि रनिंग वाटर से मूव होता है। हम कहते हैं कि हमें थोड़ा सा आइडिया भी था इसका, इस पर काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो एक है आपका एवोलियन। एविलियन आपका एयर के साथ है, ये है एलुवियल, एलुवियल, एलुवियल। ये अब एलुवियल जो है ना, एलुवियल आपका वाटर के साथ, रनिंग वाटर से जो मूव होता है सॉइल, उसको हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है? ये आगे इसकी एक और चीज़ आई हुई है कि जो सॉइल, ठीक है, वो सॉइल जो कि ठीक है, ये कहता है कि वो सॉइल जो कि डिपॉजिट हो एट द बॉटम ऑफ द लेक्स, ठीक है, इज नोन एज लिकोस्ट्राइन। ठीक है, लिकोस्ट्राइन सॉइल। अब इससे आप मतलब एक चीज़ हमने पढ़ी थी लेकोलेतना, उससे भी आइडिया ले सकते हो कि वो भी कुछ बेड्स के बीच में था। ठीक है, जो हमने जो टेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़ी थी बेसिकली, जो आपने छोड़ दी थी फिर। ठीक है, तो वो जो थी ना, बेसिकली उसके साथ आप लिंक कर सकते हो कि द सॉइल विच इज़ डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द लेक्स इज कॉल्ड द लेकोस्ट्राइन सॉइल। ठीक है, एंड द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज टर्म्ड एज द कोलोवियल सॉइल। ठीक है, कोलोवियल सॉइल। ठीक है, सच एज टेलस। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा आता है, इसको आपने याद करना है बेसिकली। ठीक है, यू हैव टू मेमोराइज दिस। मैंने डिफरेंट उसमें आपको शेड करके दे दिया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई भी ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटी के से जो हमारी सॉइल मूव होती है, उसका बेसिकली जो है ना, उसका ये हो गया टेलोस। ठीक है, उसका एग्जांपल है टेलोस। और वो सॉइल कौन सी होते हैं? वो होती है हमारी कैलोवियल, कैलोवियल सॉइल। ठीक है,
अब हम लास्ट में पढ़ते हैं कि लास्ट कौन सा है। लास्ट हमारा है बेसिकली आपके पास the soil which is transported the soil which is transported by glaciers either by ice or by water issuing from melting of glacier is termed as the glacier or soil or glacier drift or simple drift। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है एज द नेम सजेस्ट कि आपकी ग्लेशियर वाटर से और ग्लेशियर के मतलब ग्लेशियर आपका मेल्ट होता है तो या तो वो वाटर बना लेगा या वो एज अपने फॉर्म में अगर रहे तो वो क्या होगा, वो बेसिकली आपका आइस होगा। तो अगर आप ये कहें कि ठीक है, तो आप ये याद करोगे बेसिकली कि मैंने ये डिफरेंट जो है ना हाइलाइटर्स यूज़ करके हाईलाइट कर दिया है कि द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड इज एलोवियल सॉइल। ठीक ठीक है। अच्छा आपसे मैं अगर आपसे मैं ये पूछूं कि एलोवियल सॉइल क्यों है, ठीक है, एलोवियल सॉइल इसलिए है कि आपको मैंने कहा था कि इस तरह ये जो वर्ड है ना ये कोई एयर की तरह है, तो आप कहो कि वेट के साथ ताल्लुक है इसका। तो हमें ये पता चलता है कि जो बेसिकली आपके टॉप पे सबसे क्या था कि आपके दो किस्म के सॉइल होते हैं, एक होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल और एक होता है आपका जो होता है रेजिडुअल सॉइल। ठीक है, रेजिडुअल सॉइल्स वो है जो आपका जो वेदर रॉक से आता है, ठीक है, और जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है वो है जो कि आपका किसी मूविंग एजेंट जिसमें हम वाटर आइस और विंड और जो बाकी ग्रेविटी, ठीक है, तो ये जो है ना ये जैसे लिखा हुआ है कि अच्छा तो वो जो सॉइल है ना उसको हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। वही आपको मैंने बताया कि विंड आइस वाटर एंड ग्रेविटी के मूविंग एजेंट से जो मूव होते हैं वो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपसे मैं कहूँ कि एग्जांपल्स कौन से हैं रेजिडुअल सॉइल के, तो रेजिडुअल सॉइल के एग्जांपल है सैंडस्टेट क्लेज, ठीक है, जो आपके मेजर सॉइल्स होते हैं, ठीक है। तो अच्छा अब मैं आपसे ये पूछूं कि जो सॉइल है वो कौन सा सॉइल किसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल में वैसे जो डिफरेंट एजेंट्स होते हैं मूविंग एजेंट्स, तो जो मूविंग एजेंट मतलब मूव करता है उसके साथ वो ऐसा रिलेटेड है वो जो नाम है जिसको हम कहते हैं सॉइल को पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड क्या एविलियन, ठीक है, सॉइल, ठीक है। तो द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एविलियन, एयर बाय विंड, एयर या विंड, ठीक है। द सॉइल विच इज एयर तो नहीं, कैसे विंड ही, कैसे विंड ही तेज होता है ना। तो द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड एविलियन सॉइल, ठीक है, सच एज लुइस। अब लुइस जो है LOE जो सॉइल है बेसिकली ये वो सॉइल है जो कि बेसिकली आपका विंड से मूव होके आता है, ठीक है। अब दूसरा जो सॉइल है वो क्या है, वो है एलुवियल सॉइल। ये वो सॉइल है जो वाटर से हम जो मूविंग एजेंट वाटर से मूव हो रहा हो। और इसके अलावा जो है ना ठीक है, एलुवियल सॉइल द सॉइल विच इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द लेक्स इज नोन एज द लेकुस्ट्राइन सॉइल, ठीक है। वो सॉइल जो कि डिपॉजिट हो, ठीक है, उसको एट द बॉटम ऑफ द लेक्स और बॉटम ऑफ द लेक इज नोन एज द लेकोस्ट्राइन सॉइल, ठीक है। and the soil transported by gravitational force is termed as colluvial soil such as टेलोस, ठीक है। टेलोस एग्जाम्पल है एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स से जो सॉइल मूव हो रहा हो, ठीक है। द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्लेशियर ईदर बाय आइस और बाय वाटर issuing from melting of the glacier is termed as the glacier soil or the glacier drift or the simple drift, ठीक है। simple drift, glacier drift और जो ग्लेशियर सॉइल है वो हम इससे कहते हैं जो कि ग्लेशियर से मूव हो रहा हो, जो कि पानी भी हो सकता है, वो पानी जो ग्लेशियर से मेल्ट होके आया हुआ हो। अच्छा अब हमें यहाँ से पता चल जाता है ये इमेजेस से कि बेसिकली कौन सा है। अब ये बेसिकली जो है एविलियन, तो ये मैंने जैसा भी कहा था कि एविलियन जो है न सर एविलियन, ठीक है, एविलियन,
ठीक है, एलियन, ठीक है, सॉरी। एलियन जो है, इस सॉइल जो है ये एयर किस तरह से स्पेल होता है, तो इसको हम विंड के साथ ले लेंगे। द सॉइल, दिस सॉइल इज एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड। और दूसरा जो है वो एलुवियल सॉइल, ये वो सॉइल है जो वाटर से हम, इसमें अगर आप नोट करें इसमें पोर्स भी हैं और कुछ ऐसा है कि गीला गीला टाइप, और पता चल रहा है कि दिस सॉइल्स आर एक्चुअली फ्रॉम वाटर। अब ये जो है ये लेकस्ट्राइन है, ये वही चीज़ है जो आपको मैंने कहा था कि जो सॉइल लेक्स में डिपॉजिट हो रहा हो, तो वो जो है ना वो सारा होता है लेकस्ट्राइन डिपॉजिट के, जैसे आप इमेजेस में देख सकते हैं रिसर्च गेट के नीचे। अच्छा, फिर जो ये है कोलुवियल। कोलुवियल जो है, कोलुवियल वो सॉइल है जो कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से मूव हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख सकें, ठीक है, कि द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड ए विलियन सॉइल सच एज लॉइस एग्जाम्पल। ठीक है भाई, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल। ठीक है, द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड deposited at the bottom of the lakes is known as the lacustrine soil, and the ठीक है, and the soil transported by gravitational force is termed as the colluvial soil such as Talos। Talos एग्जाम्पल है किसका, ये है कोलुवियल। कोलुवियल कौन सा है, जो कि ग्रेविटेशनल पुल के थ्रू जाता है। तो टेलोस किसका एग्जाम्पल है कि जो कि आप ग्रेविटी से मूव हो रहा हो, वो सॉइल का। ठीक है, उसके बाद क्या है, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर्स इधर बाय आइस और बाय वाटर यूजिंग इशूइंग फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इज टर्म्ड एज द ग्लेशियर सॉइल और ग्लेशियर ड्रिफ्ट। और सिंपल ड्रिफ्ट लिखो तो इसका मतलब क्या है कि वो सॉइल है जो कि बेसिकली आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है ग्लेशियर के पानी से या ग्लेशियर के बर्फ़ से। मतलब अगर ग्लेशियर का पानी पिघल जाए और उससे कोई सॉइल मूव हो रहा हो, तो उसको भी हम कहेंगे कि ग्लेशियर सॉइल, ग्लेशियर ड्रिफ्ट और सिंपल ड्रिफ्ट। अब हम नीचे जाते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कि the accumulation of decaying and chemically deposited vegetable matter under conditions of excessive moisture results in the formation of the cumulose soil such as peat and muck। अच्छा, ये वो सॉइल है जो कि लूज सॉइल है मेरे हाथ में, जिसको हम ऑर्गेनिक सॉइल भी कह सकते हैं। तो वो पीट किस तरह होता है कि द एक्यूमुलेशन ऑफ द डिकेइंग एंड केमिकली डिपॉजिटेड vegetable matter under the conditions of the excessive moisture results in the formation of the cumulose soil such as peat and muck। ठीक है, तो ये वेजिटेबल किस होता है, वेजिटेबल मैटर अंडर कंडीशन एक्सेसिव मॉइस्चर। ठीक है, इससे बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड अनऑर्गेनिक सॉइल, जिसमें हम पीट एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम नीचे जाए तो नीचे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है,